Hello friends, good morning to all. This is Rajesh Kumar Singhal and I am coming here with a lecture on basics of climate change. Friends, this is my first lecture and I am currently working as a scientist at ICAR, IGFRI. I have done my MSc and PhD from plant physiology. So friend, this is one of the important topic and emerging topic and important for all the competitive exams. And in this lecture we will cover the some important facts of climate change, such as the definition of climate change, what are the causes of climate change, and what about the some facts about the IPCC, then the greenhouse gases and their contribution by different sectors, country, and some as international agencies, and finally we will cover the some adaptation and mitigation approaches. So we will start our lecture with the uh, definition of weather. So weather can be defined as the state of the atmosphere with respect to wind, temperature, cloudiness, moisture, pressure, its. सो वेदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस या रीजन का टेम्परेचर, विंड, क्लाउडीनेस और मॉइस्चर कितना है, उसके हिसाब से वो उस पर्टिकुलर रीजन का वेदर होगा. और जब हम बात करते हैं कि ओवर 30 ईयर्स वेदर, कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे 30 ईयर्स का जो टेम्परेचर है या विंड पैटर्न है या क्लाउडीनेस पैटर्न है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. सो क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न ऑफ ए रीजन. टाइपिकली जनरली हम इसको 30 ईयर्स या इससे ज़्यादा का लेते हैं. एंड व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? सो क्लाइमेट चेंज रेफर टू द लॉन्ग टर्म shift in these weather parameters. It could be wind, temperature, cloudiness, moisture, pressure. It's like that. But mainly we are focusing on the increase in the temperature, because this is responsible for the global warming and current rise in average temperature primarily caused by the human burning fossil fuels. So friends, as you know that global warming is also a very emerging topic, and all of us are talking about this global warming, and you know that last in this century that temperature is increasing very high, and the main cause is the human only, because he is burning the fossil fuels, and the fossil fuels convert into the and contribute in the increasing the temperature. Also it was observed that the regions of the world are warming at different rates. So friends, we know very well that temperature is increasing, but it is vary with the topography and different locations. जैसे हो सकता है कि कहीं पे टेम्परेचर स्लोली स्पीड से बढ़ रहा हो, कहीं पे हो सकता है बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा हो. जैसे बोल सकते हैं, जैसे जो सिटी है, मेगा सिटीज़ है, जैसे मेट्रो सिटीज़ है, उनमें क्या होता है, उनमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पोल्यूशन भी ज़्यादा है, उनमें आपके ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन भी ज़्यादा है. तो वहाँ पर जो वार्मिंग की रेट है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एक जो रूरल एरिया है या विलेज एरिया है, वहाँ पर पॉल्यूशन भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है. The one of the NASA scientists that called Dr. Hansen used and popularized the global warming word in a conference. And average surface temperature over land region has increased almost twice as fast as the global average surface temperature of the oceans. तो इस लाइन का मतलब है कि जो हमारे अर्थ का जो सरफेस एरिया है, जिसको हम लैंड बोलते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो डबल स्पीड से इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू जो हमारा ओशन का है. और ये आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उस पर 74 to 75% ओनली ओशंस है. तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा वो ओशन का होगा, बट जो स्पीड है वो लैंड में ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. दिस इज, अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक रीज़न तो ये है लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ द ओशंस, कि ओशंस का अब क्या है कि ओशंस इतनी तेज़ी से वार्मिंग क्यों नहीं हो रहा है कंपेयर टू लैंड?
तो पहला कारण ये है कि जो ओशन होता है, वाटर होता है, उसमें क्या होता है, लार्जर कैपेसिटी होती है उसको हीट को एब्जॉर्ब करने की वाटर में एज कम्पेयर टू लैंड। दूसरा ये है, जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन के थ्रू क्या करता है, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ क्या होता है, जो हीट है उसको निकाल देता है। इसलिए वाटर का टेम्परेचर कम बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू लैंड। तो इसके अलावा हम कंपेयर करें अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर की, तो जो नॉर्थर्न पोल है उनमें वार्मिंग की जो स्पीड है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू साउथर्न पोल, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि टेम्परेचर से मेल्टिंग हो गया है इसका, और वो क्या कर रहा है कि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एट माउना लोअर एक ऑब्जर्वेटरी है जो हवाई में इस्टेब्लिश की गई थी 1958 में। ये क्या करती है, जो हमारा CO2 का जो मेजरमेंट्स है उसको रिकॉर्ड करती है और सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। और जो करंट रेट है जो CO2 इंक्रीज की, दैट इज़ 2.13 ppm ड्यूरिंग द 2021 एंड 22। इसके बाद अब हम बात करते हैं IPCC। तो इसमें जनरली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो IPCC है वो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, बट इसका जो सही मीनिंग है वह दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दिस दैट फंडेड इन द 1988। एंड ये क्या है, एवरी 5 to 6 ईयर में एक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो जो इसकी फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 1990 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद जो इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इस्टेब्लिश है। और अभी लेटेस्ट में जो 2023 है उसमें इसकी 6th रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और 6th रिपोर्ट में जो मेनली जो रिपोर्ट इसकी सिंथेसाइज होती है उसमें 3 ग्रुप काम करते हैं। एक तो वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, वर्किंग ग्रुप सेकंड एंड वर्किंग ग्रुप थर्ड। तो जो पहला ग्रुप है वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, वो क्या करता है, दैट इज उसने पब्लिश किया है द फिजिकल साइंस बेसिक ऑफ क्लाइमेट चेंज, दैट इज पब्लिश्ड इन अगस्त 2021। इसमें क्या है, ये बेसिक रिसर्च करते हैं जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है आपके फिजिकल साइंस पे, तो उसकी स्टडी करता है। तो सेकंड ग्रुप है दैट इज वर्किंग ग्रुप सेकंड, दैट इज रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द फरवरी 2022। वो क्या करता है, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है उसके लिए क्या एडेप्शन स्ट्रेटजी हो सकती है या बैलेनोटिक, या उसका क्या डेंजर या खतरा है क्लाइमेट चेंज से, उस चीज़ की स्टडी करती है। और तीसरा है वर्किंग ग्रुप थर्ड, वो क्या करता है, जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी है क्लाइमेट चेंज के लिए उस पर रिसर्च करता है। और ये सब तीनों को मिला के क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, सिंथेसिस रिपोर्ट, दैट इज पब्लिश्ड इन द मार्च 2023। और इस रिपोर्ट की खास बात ये थी कि इस बार इस रिपोर्ट में सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स वर्ड्स को यूज किया गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कि जियोपॉलिटिक्स का, तो इसमें क्या है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स होती है एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ, और उसके जो सोशल रिलेशनशिप का है और उसका क्लाइमेट चेंज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ को भी इस बार के क्लाइमेट मॉडल में जो लेटेस्ट वाला है 2023 का उसमें ऐड किया गया। इसके बाद फ्रेंड, द 2007 नोबेल पीस प्राइज वाज शेयर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स बिटवीन द IPCC and the IPCC representative is the Dr. R.K. Pachuri and Dr. A.L. Gore, that is American environmental politician, and they awarded for Nobel Peace Prize, the biggest prize of the world. In October 2022, the IPCC and IPPES also shared the Gulbenkian Prize for Humanity. So IPCC award with these 2 big awards. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वाई क्लाइमेट चेंज इज सो सीरियस इश्यू। सो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि अभी लास्ट कुछ सालों से क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन हो रहा है। तो ये इतना बिग इशू क्यों है कि मतलब एवरी प्लेस और एवरी स्टेज पे इस चीज़ की बात चल रही है। तो अगर हम इस चीज़ की डाटा देखें तो जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वाज अराउंड 1.1 डिग्री अबोव इन 2011 to 22। तो जो 2011 से 22 में है टेम्परेचर 1 से 1.1 डिग्री इंक्रीज हुआ है टोटल टेम्परेचर, जो ग्लोबल अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है। अब इसका रेंज है 0.95 से 1.20 डिग्री। अब सबसे ज़्यादा मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो लैंड का टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो वो कितना है, जो एवरेज टेम्परेचर दैट इज 1.59, और एवरेज जो वेरी कर रहा है वो कितना है 1.34 से 1.83 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि ओशियन का इसके कंपेरिजन में कितना हुआ है
0.88 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड ये डाटा जो है वो आपका 1850 और 1900 से कंपेयर किया है कि इतना टेम्परेचर तब से और अब तक इतना इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो 21st सेंचुरी है जो आफ्टर 2000 है, तो 2001 से 20 तक जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ 0.99 डिग्री कंपेयर टू 1850 टू 1900। तो इतना टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ है। तो अब ये देखिए जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन कोज्ड है। मतलब नेचुरली क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस है, डेवलपमेंट से चेंजेस कंटिन्यू होंगे, बट जो अभी लास्ट जो इंडस्ट्री जब हमारा एरिया है वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1850-1900 से, डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, मॉडर्न जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो टोटल इंक्रीज हुआ है आपका टेम्परेचर 1.1 डिग्री, उसमें से ओनली ये 1.07 डिग्री कॉन्ट्रीब्यूशन बात ओनली बाय द ह्यूमन कोस्ट। अब जो ग्लोबल टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ है इसमें आपका रेस्पॉन्सिबल कौन है, मेनली आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक दूसरा है मेथेन, इसके अलावा और भी है जो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अपन का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें सिंक कैपेसिटी, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि सिंक क्या होता है, कि जैसे हमने जो अपन का व्हीकल है या फिर उससे है जिससे CO2 का इमिशन हुआ, CO2 इमिशन होने के बाद क्या होता है, लैंड जो है हमारे जो ओशियन है या लैंड है वो क्या करती है, इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जनरली ये वैल्यू है 56%। तो पर ईयर जितना आप CO2 इमिशन करेंगे जितने भी पूरा वर्ल्ड वाइड, उसका 56% तक हमारा जो लैंड और ओशियन है वो कंट्रीब्यूट मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट अभी लेटेस्ट IPCC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी लैंड और ओशियन की सिंक कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं तक 4.6% मतलब नियरली 5% तक रिड्यूस हो रही है। 6.6 गीगाटन CO2 इस बार जो 2019 में था कंपेयर टू 2018 इतना कम सिंक किया था, राइट। इसलिए ये एक सीरियस इश्यू है। इसके अलावा हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी कभी कि अभी प्रेजेंट में जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो अब 417.6 डिग्री ppm तक पहुंच गया, पार्ट्स पर मिलियन। ये 2022 की स्टडी है। उसके अलावा जो सेकंड ग्रीन हाउस गैस है दैट इज मेथेन, उसका पहुंच गया है आपका 1896 ppb, एंड थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड, उसका पहुंच गया है आपका 335 ppb। तो ये आपका लेटेस्ट डाटा है, तो ये डाटा भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि एवरेज एनुअल GHG इमिशन ग्रीन हाउस गैसेज की जो पर ईयर जितना ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन हुआ है, अभी अगर कंपेयर करें हम 2010 से 19 में, ये डिकेड्स में जो लेटेस्ट डिकेड्स है कंपेयर टू 2000 से 2009 में, तो जो पहले 2.1% पर ईयर तक मतलब एनुअल हो रहा था वो अभी 1.3 हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो GHG इमिशन है वो इस डिकेड्स में कम हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि अभी हम क्लाइमेट चेंज में मिटिगेशन की इतनी जो आपका बायो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर पैनल है या फिर विंड एनर्जी है, ये सब हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं, इसके कारण हमारा थोड़ा सा ये कम हुआ है। अब बात करते हैं टोटल वार्मिंग में, जो ओशन वार्मिंग है वो अकाउंट करता है आपका 91% तक, और लैंड है वो करता है 5%। बाकी आइस लॉस जो हो रहा है आपके पोलर से वो 3%। ऐसे करके हमारा ये टोटल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूशंस है। इसके बाद अगर हम देखें जो वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो दिखा है मीन सी लेवल राइज। मतलब जो आप अभी देखते हो कि सुनामी आ रही है या फिर जितने ओशंस में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आइस पिघल रही है और वो आइस कहाँ जा रही है, ओशन में। तो उसका क्या है, पर ईयर उसका जो सी लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब ये डाटा देखें अगर, तो 1901 से 1971 तक जो राइज था वो 1.3 mm था पर ईयर, जबकि जो 1971 से 2006 में ये बढ़ के कितना हो गया है एवरेज 1.9 mm। और अभी लेटेस्ट में अगर बात करें हम 2006 से 2018 तक, तो ये डाटा हो गया है 3.7 mm। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सी लेवल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और फ्यूचर में और भी इंक्रीज होगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो सी के किनारे पर जितने भी आपके सिटीज़ हैं वो क्या होगी फ्यूचर में, मतलब उनमें
सुनामी या साइक्लोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं तो फ्रेंड्स कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है कि अगर हम बात करें 1850 से 2019 तक, तो 170 ईयर्स के जो पीरियड है उसमें हमारा टोटल जो ग्रीन हाउस का प्रोडक्शन था वो हमारा 2400 गीगाटन था। जबकि अब बात करें हम 1850 से ओनली 1918 की 140 ईयर्स की, तो वो ओनली 1400 था। मतलब 140 साल में 140 ईयर्स में जो ग्रीन हाउस का प्रोडक्शन 1400 था आउट ऑफ 2400। और अगर हम बात करें 1990 से और 2019 तक की, ओनली 30 ईयर्स के एरा में हमने 1000 गीगा टन CO2 प्रोड्यूस किया है। मतलब ये इन ऑलमोस्ट 42% जो अब तक हुआ है उसको 42% हमने ओनली 30 ईयर्स में किया है, जबकि वो पहले 170 ईयर्स में प्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद करें टोटल 2019 की, तो टोटल जो प्रोडक्शन था वो कितना था 59 गीगा टन CO2। तो जो कि क्या था कि जो आपका 1990 था उससे 54% हायर था और 2010 से 12% हायर था। उसके बाद अगर देखें हम डाटा में, तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है कौन सी जो ग्रीन हाउस गैसेज में, वो हुआ है फ्लोरिनेटेड गैसेज, जिसमें हमारा फ्लोरोकार्बन आता है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि 1919 तक ये गैसेज प्रेजेंट इन्वायरमेंट में थी नहीं, लेकिन उसके बाद जब हमने कूलिंग के लिए फ्रिज या फिर AC का यूज किया, तो ये गैसेज का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है क्योंकि ये जीरो से इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा अगर 1750 से हम देखें तो CO2, मेथेन और N2O की कंसंट्रेशन में 47, 156 और 23% का इंक्रीमेंट देखा गया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम CO2 इमिशन की बात करते हैं कि जैसे आपके जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता है CO2 इमिशन में अब तक का 1850 से अगर 2019 का देखा जाए तो वो है नॉर्थ अमेरिका। सेकंड नंबर जिसका कंट्रीब्यूशन है 23, जो कि पूरे वर्ल्ड का 1/4 कह सकते हैं हम। उसके बाद आता है दैट इज सेकंड वन इज यूरोप, दैट 16%, ईस्टर्न एशिया 12%, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज दैट इज 11%, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न सेंट्रल एशिया 10%, साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक जिसमें हमारा इंडिया भी आ जाएगा 8%, अफ्रीका 7%। तो ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे हाईएस्ट ये इम्पोर्टेंट है और हमारा इतना है। उसके अलावा अगर हम बात करें अगर पर कैपिटा की, पर पर्सन की बात करें, तो वहाँ पर भी नॉर्थ अमेरिकन पर्सन है वो एक ईयर में अगर दिस इज 2019 डाटा, तो वन पर्सन इन 1 ईयर इमिटेड 19 टन CO2। उसके अलावा मिडिल ईस्ट में 13, ईस्टर्न यूरोप में 13, ऑस्ट्रेलिया 13, ईस्टर्न एशिया 11, लैटिन अमेरिका 9.2, साउथर्न ईस्टर्न एरिया 7.9। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो नॉर्थर्न अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज है उसमें ज़्यादा एमिशन हो रहा है कंपेयर टू एशियन कंट्रीज में। अब हम बात करते हैं सेक्टर वाइज कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो सबसे ज़्यादा सेक्टर जो है बिगेस्ट सेक्टर इज 34% विद एनर्जी सेक्टर। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल में 20 गीगा टन इक्विवेलेंट। अब इसमें अभी जो लेटेस्ट में देखा 2019 में वो 2.3% है, मतलब इसमें रिड्यूस हुआ है। मतलब इसका जो एनर्जी सेक्टर से हम, क्योंकि हमने अल्टरनेटिव सेक्टर्स एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स जैसे विंड है या फिर इलेक्ट्रिक है वो यूज करना स्टार्ट किया है, बायो इलेक्ट्रिक है। उसके बाद इंडस्ट्री डेट कंट्रीब्यूट सेकंड नंबर पे है 24% और इसका कंट्रीब्यूशन है 14 गीगा टन। इसमें भी रिडक्शन देखा गया है। देन थर्ड नंबर पे आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लाइव स्टॉक। इसका कंट्रीब्यूशन है 13%, वो 13 गीगा टन इसका एमिशन है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, वो 15% है। और नेक्स्ट आता है बिल्डिंग सेक्टर। फ्रेंड्स ये सेक्टर रेड में इसलिए दिखाया गया कि क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ देखी गई है। जैसे जैसे जो नया मॉडर्न जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हुआ है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसमें बट देखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें से 72% तक जो कंट्रीब्यूशन है वो अर्बन एरिया का है। बाकी जो बचा है 28% वो आपका रूरल एरिया है। उसके बाद बात करें अगर हम पर हाउस होल्ड की,
तो जो वर्ल्ड के 10% जो हाई कैपिटा इनकम वाले हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 34 to 45%, मतलब सबसे ज़्यादा ओनली वर्ल्ड के 10% लोग हैं जो 45% आपका टोटल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन करते हैं। उसके अलावा मिडिल अगर उसमें जाए हाउस होल्ड में, तो वो पॉपुलेशन है आपकी 40 to 53% और कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली 40%। और बॉटम पे जो आपका पुअर जो आते हैं, उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है बट कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली 13 to 15%। अब हम बात करते हैं कि अभी व्हाट आर द इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसके डायरेक्ट इफेक्ट वी कैन सी ऑन वाटर एबिलिटी एंड फूड प्रोडक्शन पे, हेल्थ एंड वेलबींग्स, सिटीज सेटलमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चेंज इन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, फिनोलॉजी, स्पीसीज रेंजेस। तो वाटर एबिलिटी एंड फूड प्रोडक्शन पे क्या सिस्टम होगा, फिजिकल वाटर एबिलिटी। तो जैसे हमने बताया कि क्लाइमेट के कारण जो आपका रेनफॉल है उसकी इंटेंसिटी भी चेंज होगी, और हो सकता है कहीं पे ड्रॉट आ जाए, कहीं पे फ्लड आ जाए, तो जो फिजिकल वाटर एबिलिटी है वो आपकी चेंज हो जाएगी। सेकंड है इसका आपका एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स ये भी हम देख रहे हैं कि जो रिसेंट एरिया है, वो रिसेंट टाइम है, उसमें आपके जो एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें भी भारी मतलब रिडक्शन आया है, हाई रिडक्शन आया है, क्योंकि बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज है आपका वो एवाटिक स्ट्रेस का कारण बनता है, जैसे ड्रॉट है, हीट स्ट्रेस है, तो वो बाद में क्या करते हैं आपकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। सेम एनिमल एंड लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो एनिमल और लाइव स्टॉक का जो रिप्रोडक्टिव है वो भी आपकी हाई टेम्परेचर में इफेक्ट होता है। सेम केस फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। सेकंड दैट इज हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसमें एक तो इन्फेस्टिशियस डिजीज की अभी हो सकता है कि रिसेंट जो फ्यूचर है उसमें नई नई डिजीज का भी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाए, तो हो सकता है मे बी नियर फ्यूचर देयर विल बी ऑकरेंस ऑफ सम न्यू डिजीजेस। देन हीट का भी आएगा। देन माल न्यूट्रिशन, आपका जो क्वालिटी फूड है उसमें भी रिडक्शन होगा। देन हार्म फ्रॉम वाइल्ड फायर, और ज़्यादा टेम्परेचर से कभी कभी क्या होता है वाइल्ड जो जंगल है उसमें भी आगे वो लग जाती है, तो उसके कारण भी आपका इफेक्ट होगा। मेंटल हेल्थ, और जैसे कि हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बहुत सारी जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है वो भी ऑकरेंस ज़्यादा होगा इन नियर फ्यूचर। देन वाट अफेक्ट ऑन सिटी सेटलमेंट्स, तो फ्लडिंग से आपका डैमेज बढ़ जाएगा, कोस्टल एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इकोनॉमिक लॉस, ये सब इफेक्ट भी आपको नियर फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के मे बी दे विल बी इफेक्ट्स। Then ecosystem, so there are three systems, that terrestrial, freshwater, ocean, and it can be said that in the climate change scenario all three sector will be affected drastically. अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। तो इस प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस किया कि क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी का काइटो एंड मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट्स आर सपोर्टिंग। ये क्या कर रहे हैं आपके, मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है बहुत सारी, वो एक दूसरे से मिलके मतलब इसको क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे किस कंट्रीज़ को क्या टारगेट दिया जाए, और कैसे मतलब पॉलिसीज़ नई नई बनाई जाए, जिससे कि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफेक्ट को फ्यूचर में रोक सकें। तो सबसे पहले काइटो प्रोटोकॉल्स आता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसको यूएनएफसीसी में अडोप्टेड किया गया था ड्यूरिंग द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो इन 1992 एंड अडोप्टेड इन कायाटो जापान। उसी के नाम पे उसको काइटो प्रोटोकॉल दिया गया, और ये अडोप्टेड किया गया था 11 दिसंबर 1997 एंड एंटर इनटू फोर्स ऑन 16 Feb 2005। तो इसमें 190 कंट्रीज़ ने इसमें मतलब पार्टिसिपेट किया था। द काइटो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएनएफसीसी। तो ये यूएनएफसीसी को ऑब्जेक्टिव पे काम कर रही है। उसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना। और कैसे रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस की गैसेस को कंसंट्रेशन को कम करके। उन्होंने एक फिक्स कर दिया कि पर कंट्री के लिए कि आपको इतना ग्रीन हाउस का प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर्स में कम करना है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी ग्रीन हाउस, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड की गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड्स, ये सब गैसेज इंक्लूड की गई, और नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड।
नाइट्रोजन फ्लोराइड को आफ्टर 2012 जो सेकंड राउंड हुआ था काइटो प्रोटोकॉल का, जिसको दोहा राउंड के नाम से भी जानते हैं, उसमें ऐड किया गया था। 10 नेक्स्ट इज द मोनेट्रियल प्रोटोकॉल। द मोनोट्रियल प्रोटोकॉल ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, सेम एज काइटो प्रोटोकॉल, और इसका जो एम था वो था कि जो हमारी क्या है ग्रीन हाउस ये गैसेज है, इनके कारण क्या हो गया है, ओजोन लेयर का ईयर वाइज ईयर डिप्लीशन हो रहा है, जिससे कि क्या है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ पे ज़्यादा आ रही है, और वो मे बी इन फ्यूचर वो स्किन कैंसर और बहुत सारे मतलब डिसइफेक्ट दिखा रही है। तो जो सब्सटेंसेस हैं, जो भी सब्सटेंस है, उसको रिड्यूस करने का काम इस मोनोट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया गया, और जो ओजोन डिप्लीशन को कम कर सके। ये 1987 में एग्रीड हुआ था और कम इन टू फोर्स एट 1989। और उन्होंने ये प्रोजेक्शन दिया था, दे इंडिकेटेड दैट ओजोन लेयर विल रिटर्न टू 1980 लेवल बिटवीन 2040, कि 2040 में जो ओजोन लेयर है वो 1980 के लेवल पर पहुंच जाएगी अक्रॉस द वर्ल्ड। बट अंटार्कटिका जो है उसमें एक बड़ा होल है, तो उसको फिल करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में लगेगा, तो 2016 में ये भी कवर हो जाएगा। टिल डेट देयर विल बी 9 रिविजन्स मेड। अब तक 9 रिविजन्स मेड ही किए हैं। फर्स्ट 1991 में लंदन में हुआ था, और लास्ट जो था 2016 में किगाली में हुआ था। नेक्स्ट इज द पेरिस एग्रीमेंट्स। दिस एग्रीमेंट्स इज अडॉप्टेड इन 2015। द एग्रीमेंट्स कवर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एडेप्टेशन, क्या क्या एडेप्टेशन टेक्निक्स है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। एंड फाइनेंस, कि जो पुअर कंट्रीज़ है, जो मतलब लो इनकम कंट्रीज़ है, उनको फाइनेंस का प्रोवाइड करें, जिससे कि वो टैकल कर सके क्लाइमेट चेंज सिनेरियो से। द पेरिस एग्रीमेंट वाज नियोगेट बाय इसमें एक 196 कंट्रीज इंक्लूड हुई थी 2015 में एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नियर पेरिस, दैट ऑकर्स इन फ्रांस। इसके अलावा द पेरिस एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, इसका गोल क्या था कि इसके टेम्परेचर को जो है वो 2 डिग्री से कम करना है। जो अभी टेम्परेचर है नेक्स्ट डिकेड्स में इसको 2 डिग्री तक कम करना है। और अगर हम 21 सेंचुरी की बात करें तो इसको क्या करना है, इमिशन शुड बी रिड्यूस्ड, कि जो हमारा जितना इमिशन रिड्यूस हो रहा है उसको एज सून एज पॉसिबल रिड्यूस करना है। और हमारा 21st सेंचुरी के एंड तक जो इमिशन है, जितना CO2 इमिशन है, उसको जीरो करना है। अगर हमको 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है अगर वो रिड्यूस करना है तो 2030 तक हमको 50% तक इमिशन कट करना पड़ेगा। देन ओनली पॉसिबल दैट वी विल रीच दिस टारगेट। द पेरिस एग्रीमेंट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 22 अप्रैल 2016 ऑन अर्थ डे एट द सेरेमनी इन न्यूयॉर्क। तो इसी कॉन्फ्रेंस में अभी कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिए गए थे पर 25 सितंबर 2015 को। उसमें 2030 के लिए हमारे कुछ टारगेट सेट किए गए थे जो 17 सस्टेनेबल गोल्स के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें 169 टारगेट्स थे टोटल। तो इसमें क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और टैकलिंग क्लाइमेट चेंज बाय 2030। तो अब इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट गोल्स क्या क्या थे। एक तो क्वालिटी एजुकेशन, कि सबको एजुकेशन देना है, उसके लिए अवेयर करना है। क्लाइमेटिक एक्शन, जो भी एक्शन हमको अभी लेना है वो उसमें मतलब विदाउट डिले वी हैव टू टेक, एंड प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। और 6 प्रायोरिटी एरियाज का क्या क्या था, एजुकेशन, ट्रेनिंग, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए इंडिया में क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज गई। तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम launched in 2008 to mitigate and adapt to the adverse impact of climate change. The action plan is designed and published under the guidance of Prime Minister Council on Climate Change. एंड ये क्या है, जो हमारा नेशनल एक्शन था इसमें टोटल 8 मिशन इंक्लूड किए गए थे। तो फर्स्ट मिशन कौन सा था, नेशनल सोलर मिशन। तो इसका मिशन था कि जो हमको इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल या फिर जो आपका क्या कहते हैं ओल्ड वे है उनको छोड़ के सोलर वे से हमको 20,000 मेगावाट का मतलब कम से कम इतना हमको सोलर पावर चाहिए। तो इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज किसान
ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये स्कीम नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत 2019 में प्रमोट की गई थी। सेकंड मिशन है नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो ओल्ड जनरेशन थी, जो अभी थे, उनमें हम क्या करते थे, सोडियम लैंप या हेलोजन लैंप वो यूज करते थे। तो उसकी क्या थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो ज़्यादा लेस एफिशिएंट थे। तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए 2015 में उज्ज्वला उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल्स ये स्कीम आपकी चलाई गई थी। देन थर्ड स्कीम इज द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट्स। तो इसमें क्या किया गया था, जो हमारी बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेस्ट मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये मिशन चलाया गया था। देन नेक्स्ट इज द नेशनल वाटर मिशन। तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20% इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू मनरेगा प्रोग्राम। नेशनल मिशन फॉर नेक्स्ट है सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो या तो हिमालयन रीजन में है या वेस्टर्न घाट में है। तो हमारा मिशन है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करना है, तो इसके लिए ये मिशन चलाया गया था। उसके बाद एक ग्रीन इंडिया मिशन जो 2015 में था। तो इसका उद्देश्य ये था कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर एरिया है उसको इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जैसे हम फॉरेस्ट एरिया कवर इंक्रीज़ करेंगे वैसे हमारे जो लैंड है उसकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। और उनका एम है कि कम से कम 2.5 बिलियन टन ऑफ CO2 इमिशन है उसका सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ाया जाए। देन नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसके अंतर्गत एज यू नो दैट फ्रेंड, एग्रीकल्चर हमारा जो इंडिया है वो एक भारत कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट की गई है, लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये अभी लेटेस्ट में की गई थी, जिसको नेचुरल फार्मिंग भी हम बोल रहे हैं। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थन ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें जो रेनफेड एरिया है उसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए नए नए आपके पोंड खोदे गए हैं, और वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपका ड्रिप इरीगेशन को प्रमोट किया गया है। नेशनल बैम्बू मिशन एंड सम मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर वाटर मैनेजमेंट। देन नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, देन रिसर्च। तो इसमें क्या किया गया है कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट साइंस क्या है, उसका डाटा शेयरिंग करना है, उसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये सब के लिए एक मिशन बनाया गया था। एंड नाउ वी कम टू व्हाट आर द एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। तो जो हमारे 4 सेक्टर्स है, एनर्जी सप्लाई, लैंड, वाटर, फूड, सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी, लाइवलीहुड। तो क्या क्या एडेप्शंस हमको चाहिए। जैसे फर्स्ट है एडेप्शन में एनर्जी रिलायबिलिटी, कि हमको एनर्जी में ओनली जो कोल या ओल्ड जो है उन्हीं पे डिपेंड नहीं रहना है, हमको कुछ नए सोर्स जैसे विंड है, सोलर है, ये सोर्स भी अपनाने हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारी डिपेंडेंसी है एक सोर्स पे वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। फिर रेजिलियंस पावर सिस्टम, कि हमारे जो एक्सिस्टेंट जो पुराने पावर सिस्टम है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए जिससे कि वो मोर एफिशिएंट हो सके। उसके अलावा वाटर यूज एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जाए। तो इसके लिए मिटिगेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं, विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, मेथेन का प्रोडक्शन कम कर सकते हैं कोयल, ऑयल और गैस बर्निंग से, बायो इलेक्ट्रिसिटी इज ए अल्टरनेट ऑप्शन, जियो थर्मल एंड हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर्स का भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लेस पॉल्यूटेड, मतलब इमिशन इनसे कम होता है। फोसिल कार्बन कैप्चर स्टोरेज को हम बढ़ा सकते हैं जिससे एनर्जी की सप्लाई हम स्टोरेज कर सके। सेकंड है लैंड, वाटर एंड फूड। तो इससे में क्या है कि हमें एफिशिएंट लाइव स्टॉक सिस्टम चाहिए, कि एफिशिएंट जिनकी मिल्किंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। इम्प्रूव लैंड मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड जितने भी सिस्टम हो सकते हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। वाटर यूज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जितने भी ऑप्शन है हम यूज कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए जितने ऑप्शन है हम यूज कर सकते हैं। इकोसिस्टम कनेक्टिविटी, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम को हम फूड वेब या फूड सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को इंक्रीज कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम इंक्रीज कर सकते हैं कि लेस इनपुट्स में हमको मोर आउटपुट मिले। इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, जिससे कि हमको जो सुनामी और वो है उनके लिए हमें मतलब सपोर्ट मिल सके। तो उसके लिए क्या है कि हमको कन्वर्जन ऑफ जो नेचुरल इकोसिस्टम से हम आर्टिफिशियल में जो जाना है उसको कन्वर्सन को कम करना है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाना है, इकोसिस्टम को जो डिग्रेड हो चुके हैं इनको रिस्टोर करना है, डाइट को हेल्दी करना है, न्यूट्रिशियस करना है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को अच्छे तरीके से और भी मैनेजमेंट करना है। मेथेन और N2O को घटाना है। रिड्यूस फूड लॉस एंड फूड वेस्ट,
उसको भी रिड्यूस करना है। उसके अलावा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटलमेंट्स में क्या कर सकते हैं, जैसे सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट, हम ऐसा मतलब बिल्डिंग बनाए जिसमें वाटर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो सके, बेटर वे से हो सके, सस्टेनेबल लैंड यूज हो सके, अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की सभी घरों में मतलब होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ट्रीज सब कुछ इंक्लूड हो सके, इकोसिस्टम सर्विसेज कि हमको जो नेचर से जो भी मिल रहा है, जो भी सर्विसेज मिल रही है उसको मेंटेन करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट बिल्डिंग सिस्टम होना चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल जैसे ई रिक्शा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, एफिशिएंट लाइटिंग जैसे एलईडी है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाईसाइकिलिंग का ज़्यादा यूज करो, जहाँ पर ज़रूरत न हो लेस कार मोटर व्हीकल्स का यूज करें, बायोफ्यूल्स जैसे जेट्रोपा से जो बायोफ्यूल्स बन रहा है या अल्टरनेटिव अदर देन पेट्रोलियम और उसका यूज करें, एफिशिएंट शिपिंग और एवियंस का यूज करें। लास्ट में है सोसाइटी, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी। तो उसके लिए क्या है कि भाई पब्लिक को अवेयर करना है कि क्या क्या क्लाइमेट चेंज के रिस्क हो सकते हैं, उसको स्पीड करो, उसको शेयरिंग करना है। सोशल सेफ्टी नेट्स की सोशल कैसे हम सेफ रख सकते हैं, क्लाइमेट सर्विसेज कि क्लाइमेट्स की क्या क्या सर्विसेज है और कैसे उनको यूज कर सकते हैं, जैसे अर्ली वार्मिंग सिस्टम कि हम भाई पब्लिक को बोल दें कि अभी हीट शॉक आने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग हम बचे रहे। डिजास्टर रिस्क कि क्या क्या डिजास्टर फ्यूचर में आ सकता है, जैसे अभी गुजरात में आ रखा है तो पहले से ही हमको मिल गया था, तो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। ह्यूमन माइग्रेशन को भी रोकना है, जो रूरल से अर्बन के लिए जा रहे हैं। लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन तो हमको सब जगह ही चाहिए। अब उसके लिए हम मिटिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे फ्यूल स्विचिंग कर सकते हैं, रिड्यूस इमिशन ऑफ फ्लोरेटेड गैसेज, हमारे जो एसी और उनका है कम यूज करें, एनर्जी एफिशिएंट जो भी है आपके बल्ब उनका यूज करें, मटेरियल एफिशिएंसी करें, रिड्यूस मेथेन फ्रॉम बेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग यूज करें। उसके अलावा कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन को भी इंक्रीज करना है, सिंक कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। तो फ्रेंड्स ये जब एडेप्शन और मिटिगेशन अप्रोच अगर हमने अडॉप्ट कर ली तो मे बी इन फ्यूचर हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इम्पैक्ट को हम 2030 और इस सेंचुरी के एंड पर आने वाली जनरेशन के लिए कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।